Hello, good morning, and welcome to the fourth episode of Careers Over Coffee with me, Ayushi, and my lovely student Alak. So, today's episode is Hello. going to be a lot different, and that is because the guest for today's show is very unique in every way. So, let's welcome the best RJ in town, RJ Purkha, who is a proud alumni of St. Edmund School, Malvinagar. Hey So, everyone! hi, Hi Ayushi, hi Alak. hello, Hello. Purkha, and welcome to the show. Thank you so much for having me. Okay, so Purkha, before we start, I have a request for you. Okay. So I want you to, introduce our show to the viewers and the listeners in RJ Purkha's radio jockey style. Oh, So why all don't you right. welcome them? This show is Careers Over Coffee, right? Right. ठीक है 98.3 मिर्ची पर आप आरजे पुरखा के साथ है 440 वोल्ट का झटका हर शाम को मैं लेके आती हूँ आपके लिए आज मैं एक स्पेशल शो पे आई हूँ आयुषी और अलग के साथ फ्रॉम सेंट एडमंड स्कूल मालवीय नगर और इसमें करियर्स ओवर कॉफी का फोर्थ एपिसोड है जिसमें आरजे पुरखा आपको बताएंगी रेडियो जॉकिंग एज अ करियर के बारे में हाय एंड वेलकम खुद ही को वेलकम कर लेते मैं Thank you so much, Purkha. So Purkha, how are you and how do you feel being live on your own school's Facebook page? Yeah, I am very well. Thank you so much for asking. I hope आप लोग भी सब ठीक हैं घर पे सब लोग ठीक है and I feel ecstatic right now. मैं बहुत I'm over the moon क्योंकि स्कूल की इतनी सारी यादें हैं जब मुझे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं अभी करंट दीपेन भाई उन्होंने रीच आउट किया था कि एक सेशन होगा हम चाहते हैं आपको इनवाइट करना है आई सो हैप्पी एंड इतनी सारी मेमोरीज एकदम नॉस्टैल्जिया खतरनाक वाला आ गया मुझे उसी मोमेंट पे लाइक रियली रियली हैप्पी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर Okay, so over to you, Alak now. So, how and when did you decide that you want to become an RJ? So, does um do we need any mhm. formal degree to become an RJ? Okay. So I'll be very honest with you. When I was in high school, that was when I decided to become a radio jockey. But unfortunately, things did not fall in place back then. My family wanted me to study kuch aur. And you don't really need a formal degree to become a radio jockey. All you need is you have to be a graduate. Plus, you have to be really, really creative. That is the most important thing of all. And when I started out as a radio jockey, it was like 2 years ago. Before that, I actually have a lot of degrees to my name. I am a CS, I'm a law graduate, and I also have a master's degree in commerce. So all of that is irrelevant for the profile that I'm working in right now. But to answer your question, no, you do not need a formal degree. Although journalism और mass communication में अगर आपके पास qualification होती है तो वो थोड़ा help करती है इस field में, but you don't need it. Okay, so Okay, basically thank you you. followed your dreams irrespective of the degrees that you had. Absolutely, that Uh, is what I did. And touch wood, I am living the dream. This is my dream job. This is what I always wanted to do. Although I've studied a lot, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी है in the meantime. But जब मैं पढ़ भी रही थी, तभी I started as a voice over artist. तो मैं अपने दिल की चीज तभी भी कर रही थी पढ़ाई के साथ साथ भी. And then eventually things fell in place, and now I am where I am. Yeah, and your voice is lovely, so you Thank you. had You're to too be an kind. artist. Okay, We will get so there. When you get there, I have to actually specifically talk about this one thing. When people keep saying, यार तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम्हें रेडियो जॉकी होना चाहिए, ऐसे नहीं होता. Why is that? वो मैं आपको आगे बताती हूँ. अपना सवाल कीजिए अगला. okay, ठीक है. I'll ask you the next question. So most people think that becoming an RJ is just coming to the radio and you just speak and speak, chill, and then just leave. You know, we all think this job to be so fancy and glamorous, without having to do much of hard work. So is that really the case? देखो हार्डवर्क के बिना कोई भी चीज नहीं होती. You have to take that, right? For a radio jockey, जो मैं आपसे कह रही थी कि लोग कह रहे हैं just have to come and talk and just leave the studio. That is not how it works. You just don't have to speak. You have to speak sense. Whatever you say, say 45 लाख की जनता मुझे सुन रही है किसी भी एट एनी गिवन पॉइंट टाइम 10 लाख लोग तो ट्यून्ड इन होंगे ही किसी भी चैनल के ऊपर. अगर आपको 10 लाख लोग सुन रहे हैं एक टाइम पे तो आप अगर नॉनसेंसिकल बातें करके जाओगे तो अगली दफा आपको सुनेगा नहीं. यू हैव टू टॉक सेंस एंड देयर शुड बी सब्सटेंस इन व्हाट यू से. तो ऐसा नहीं है कि आप आके बस बोल के चले जाओ. यू एक्चुअली हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन व्हाट यू गोना स्पीक, हाउ यू गोना स्पीक. एंड अगर आप कुछ भी बात कर रहे हो किसी लिसनर से, इट हैज टू हैव सम वैल्यू एंड सम टेक अवे फॉर द लिसनर किसी ना किसी तरीके से. तो Right. वो Only एक चीज है. then ऑडियंस को एंगेज रखना बहुत मुश्किल है. एग्जैक्टली So अगर आप सिर्फ नॉनसेंसिकल बातें करोगे तो. अच्छा तो एक रेडियो जॉकी क्या करता है स्टूडियो में जाके मैं आपको वो बताती हूँ. तो जब हमारा से फॉर एग्जांपल माय शो एयर्स इन जयपुर 3 to 5 PM.
ठीक है. So I would enter the studio at about 2 and I would first pull out content कि आज मैं अपने शो पे क्या क्या बातें करने वाली हूँ. किस सपोज कोविड का सिचुएशन चल रहा है, अगर जैसे कि आज मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहब का, तो किस किस को मुझे इंटरव्यू करना है, कौन सी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं जिनको मैं ऑन एयर लेके आ सकती हूँ, उन सबके साथ इंटरव्यू करना, उसको एडिट आउट करना, एंड कितनी रेलेवेंट बिट्स ऑन एयर जाएंगी रेडियो के ऊपर, उसको निकाल के रखना. दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एक तो ये हुआ. फिर हर रोज का कंटेंट, हर रोज कुछ फन चीजें होनी चाहिए, कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए लिसनर्स के लिए, कुछ सिटी का सोशल कनेक्ट होना चाहिए. मेरे लिसनर्स को ये भी पता होना चाहिए कि अगर यूएसए में कोई प्रोटेस्ट चल रहे हैं या फिर कहीं पे बुश फायर्स हो रही हैं, तो उसके बारे में भी अपने लिसनर्स को इन्फॉर्म्ड रखते हैं. तो इंटरनेशनल, नेशनल एंड सिटी कनेक्ट, सब चीजें एक अच्छा मिक्स होता है इन सब चीजों का. वो सारा कंटेंट निकालते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बारे में किस तरह से डिलीवर करना है वो सोचते हैं, और फिर हम करते हैं. सो इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड नॉट जस्ट दिस इज जस्ट द शो वाला पार्ट दैट आई एम टेलिंग यू. I, for instance, I host 2 shows, one for Jaipur and one for USA, evening prime time show I host there. So I pre-package it because US में तो I cannot go live, इधर I go live. तो 2 shows करने के बाद जितने भी आप रेडियो पे एड सुनते हैं, हर एक एड में जो फीमेल आवाज होती है वो मेरी होती है, जयपुर के स्टेशन से जो जाती है, क्योंकि आई एम दी ओनली फीमेल पर्सन इन दी प्रोग्रामिंग टीम हियर. तो एक ये चीज होती है. फिर सिर्फ आवाज देना नहीं, आवाज के अलावा भी पीछे की बहुत सारी चीजें होती है. फॉर एग्जाम्पल से होली आई, हर महीने हम लोग एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं. तो जैसे होली आई तो अब होली पे हम एक्टिविटी करेंगे, पूरे महीने भर एक कैंपेन चलेगा. तो उन सब के पीछे आइडिएशन होता है, क्लाइंट्स को आइडियाज पिच करते हैं, हर एक हम लोग छोटे छोटे प्रोमोज बनाते रहते हैं. जैसे कुछ भी नई चीज हुई, से फॉर एग्जाम्पल स्कूल एग्जाम्स कैंसिल हो गए, है ना, एग्जाम पोस्टपोन हो गए, तो उसके ऊपर हमने प्रोमोज बजा दिए. तो जब भी हम कोई भी चीज, कोई भी हैपनिंग इवेंट होती है, तो उसके ऊपर हम आइडिएशन करते हैं, कुछ ना कुछ फन जिंगी चीज निकालते हैं और उसके ऊपर प्रोमोज और लाइनर्स बनाते हैं, जो आप लोग सुनते हैं रेडियो पे एक्चुअली. तो बहुत Okay, so सारी you चीजें really होती है need पीछे to बैठ be के, updated with all the news, national, international, everything. You can't just एंड लोकल एज वेल. talk it यस. out. Yeah. Okay. तो ऐसा So नहीं है, जो ये सोचते हैं ना, प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट. आई एम सॉरी, आई एम बस्टिंग योर बबल. ऐसा नहीं होता आरजे सिर्फ जाके बोल के आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें और भी करनी पड़ती है. okay, so those of you who want to become an RJ, keep that in mind that you really need to do a lot of hard work for becoming an RJ. Okay, so Alak, Yes, our Indian parents generally think that their children should become an engineer or doctor, lawyer, seer, etc. So, how difficult was it for you to become an RJ or choose RJ as your career? Do you face any sarcasm from your relatives and family, or were they supportive? I'll be honest with you. Initially, I had no support. They wanted me to study, and that is what I did, because they actually really invested in me that I really should study and go ahead with some degrees. Like I said, I have a bunch of degrees in my name. But then initial support nahi tha. But जब उन्होंने देखा कि it's a very noble profession, their child would get a chance to interact with public at large and make a difference in somebody's life, become an influencer, that changed their perspective. So eventually, it took me a bunch of years to get them here where they are today, but then it worked out. So initially नहीं था कोई support, पर हाँ अब है, बहुत ज़्यादा है अब तो. yeah, definitely, अब तो होगा ही. They could be more proud, I think. Behind every success, there is always a story behind the success. A Yeah. struggle story. So it's not very rosy every time that okay, I want to become an RJ, मैं गई, मैं बन गई RJ. It's not like that. Absolutely. So when I started out मेरे voice overs वाला career, तब मेरे पास कोई mics नहीं थे. For example, let me show you one. I have this mic right now here. I have a bunch of professional mics and good equipment now. But जब मैंने शुरुआत की थी, I had no idea कि कैसे professional quality audio broadcast quality आप बना सकते हो. I started out with वो जो एक computers के साथ फ्री में Chinese headphones नहीं आते 150-200 रुपए वाले. I started out with those. And because I had the voice and I had the passion for it, I eventually saved up and then bought good mics. But मैंने शुरुआत वहाँ से की है. तो humble beginnings होती है सबकी, पर अगर आप if you really want it, you can actually get somewhere. Is what I want to say. Okay. So that was great. So आप topic कैसे select करते हो? This you have already told us. So another question is, see, we all are humans and we have different emotions. Sometimes we are not in the best of our mood, and even at that time you have to go on air every single day, and be there for your audience, make them happy, make them smile, entertain them. So how do you manage to do it when you yourself are not in a very good position? अच्छा देखिए, I'll be very honest. Again,
आरजेस जो होते हैं ना, वो इनहेरेंटली हैप्पी सोल्स होते हैं मोस्टली. अगर कोई जैसे जो बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं या बहुत ज्यादा ऐसे डाउन और डल रहते हैं अपने जीवन में, दे कैन नॉट एक्चुअली बी गुड आरजेस. दिस इज व्हाट आई थिंक पर्सनली. तो आरजेस वैसे हैप्पी सोल्स होते हैं, बट एज यू सेड बैड डेज फेजेस सबके आते हैं. बट जैसे ही स्टूडियो में घुसते हैं ना बॉस, वो म्यूजिक चल रहा होता है, माइक सामने आता है, दुनिया भूल जाते हैं हम लोग. बस हमें लगता है कि हम है, माइक है, और जो हमारे लिसनर्स है वो है, एंड देन कुछ याद नहीं आता. Because I said I'm passionate about this. This is my dream job, and this is what I always wanted to do. Even on my worst days, I've actually kicked the word that I cannot say right now because there are kids here. So I have actually worked pretty well. Touch wood. Okay. So I think that comes with professionalism and experience. Professionalism, Gradually you experience, and your introduce passion. I would say your and your passion mostly. okay. Mhm. Alak, Yes, sir. You have interviewed so many people. So can you tell any one of the memorable interviews? Oh yes, I have a bunch of memorable interviews. Okay, देखिए सबसे पहली जो होती है ना वो हमेशा यादगार होती है. You agree to that, right? तो मेरा Yes. सबसे पहला इंटरव्यू था एमपी जो है अभी जयपुर रूरल के, राज्यवर्धन सिंह राठौर. उनका मैंने सबसे पहला मेरा प्रोफेशनल इंटरव्यू जो भी था वो उनके साथ लिया था. जब मैंने मिर्ची ज्वाइन किया था उसके ठीक 1 महीने के अंदर मैंने लिया था. दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज विल रिमेम्बर वेरी फॉन्डली. okay. So we have been following on YouTube, you on Instagram and YouTube, and we have seen many of your interviews, like with Dr. Shashi Tharoor and Sachin Pilot. So we were really impressed the way you took that interview. You're very Yeah. So kind to that's say why that. Thank you so much. our audiences, Sorry. they were really excited to have you. Our audiences, they were really excited to have you because they have seen you with such famous personalities. Oh, I too you're was too very kind to excited say to be a that. co-host of this. I Yeah, am Alak. glad. The pleasure is all mine. I'm sorry I'm interrupting to all those of you who are watching right now. In case you're not connected with me on Instagram and Twitter, I am at RJ Purkha, PURKHAA is the spelling. So please feel free to drop in a message anytime you want to after this session as well. Sorry, Alak, please go on. Yeah, I was about to say that how can our audience connect with you and how can they follow you? So that's where you came automatically. That's where energy kicks in, right? Yeah. अच्छा तो एक और Uh, चीज, I'm not very active on Facebook. I'm more active on Instagram and Twitter. I'm not sure if kids these days use Twitter. You should not use because it's very toxic. Don't use it for now. Leave it for later. Yeah. Mostly students are Okay, so students. They are also more active on Instagram rather than Facebook. Okay. So I will be seeing them there. On Instagram, I'm sure you'll be Yes. having some more additional followers today. Oh, all right. Nice. Can I not see their comments or messages? Can they not comment on this live chat? Yeah, there are a few comments. I'll read them out for you. So there's How can I read them? if you're not on your laptop, I don't think you can see them on This is, I screen. can see Swati Gupta says, answer my Yeah. question. How are you? Hi, Swati. I'm very well. Thank you. Vinisha, thank you so much for welcoming me. Priyanka Ram Gehlot, big fan. Thank you. How can you become an RJ? Like I already said, to become an RJ, all you need is सबसे पहले creativity, and you have to be a graduate, of course. You have to be अच्छा qualities for a good RJ. ये भी मैं बता देती हूँ in case आपको RJ बनना है आगे जाके. अभी रेडियो इज नॉट जस्ट रेडियो के बॉक्स के पीछे आप चुप के बात करो. रेडियो इज मोर डिजिटल नाउ. तो डिजिटल प्रेजेंस से आपको सिर्फ लोकली, सिर्फ जयपुर में नहीं, जहाँ पे इनफैक्ट पूरी कंट्री में और बाहर भी लोग जानते हैं. और तो मैं तो 2 शोज करती हूँ, यूएसए और जयपुर, तो इसलिए ज्यादा रीच है. बट वैसे भी डिजिटल आपको बहुत ज्यादा जगहों पे पहुंचा देता है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते. तो टू बी अ गुड रेडियो जॉकी नाउ यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव फर्स्ट, अ ग्रेजुएट, एंड you have to have good vocal skills. Orator अच्छे होने चाहिए हो आप, articulate होने चाहिए हो. Intelligence in a way I would say कि आप well informed हो कि कहाँ पे क्या चल रहा है. Like Ayushi just mentioned थोड़ी देर पहले. Alak just dropped out, I guess. Would you like to Yeah, reconnect? she'll join back. I'll add her. You continue. अच्छा हाँ. So like Ayushi mentioned, nationally, internationally plus city का आपको पता होनी चाहिए चीजें कि लिसनर को आप इन्फॉर्म कर पाओ, लिसनर को किसी तरीके से इनलाइटन कर पाओ. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल. मतलब ऐसे नहीं कि शादी आप कहीं चले जाओ. यू लाइक व्हेन वी गो टू द स्टूडियोज, इवन इफ आई एम ड्रेस्ड इन माय संडे लीजर आउटफिट, आई वुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर कोई सेलिब्रिटी वॉक इन कर जाता है इमीडिएटली, आई एम रेडी टू टेक एन इंटरव्यू एंड
kick dash word. I cannot say that. I'm sorry, I use that word a lot. Kick that on top of that. So yeah. Purkha, we These are the have a qualities. comment from Dipen sir also. If you Thank can, you for if you want, coming I and can read it inspiring out. everyone. No, I'm reading it. Hi, Dipen bhai. Thank you for coming and inspiring everyone here. Mirchi Aji Purkha, can I request you to address all your juniors and give them your advice on how to deal with stress since you're really good at that. यार देखो स्ट्रेस के साथ डील करने के ना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. थैंक यू सो मच दीपेन भाई, आपने मुझे इनवाइट किया. आई एम रियली रियली हैप्पी. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बट जितना मैं अपनी तरफ से बता सकती हूँ हाउ आई कीप माई सेल्फ हैप्पी, कि किसी ना किसी तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखो. अगर आप खाली बैठोगे तो फिर नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट सीपिंग इन एंड पुलिंग यू डाउन. अपने आप को इन्वेस्टेड रखो किसी ऐसी चीज में जिसमें सब्सटेंस हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो बट आपको पता है आपका पैशन है, आपकी हॉबी है स्केच करना, ड्राइंग करना, आजकल तो फिटनेस वीडियोस बनाना, स्टार्ट शूटिंग वीडियोस, स्टार्ट शूटिंग देम, पुटिंग देम आउट. अपने आप को इन्वॉल्व रखो किसी ना किसी चीज में जो प्रोडक्टिव हो. दैट इज हाउ यू विल एट द एंड ऑफ द डे, जब आप सोओगे तो आपको लगेगा आज प्रोडक्टिव दिन था, ऐसे खाली और वेस्ट नहीं था. जब आप वो चीज करोगे ना, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा ज्यादा अपसेट होने के लिए या नेगेटिव थॉट्स को सीप इन करने के लिए. दिस इज व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ. आई एम नॉट श्योर हाउ हेल्पफुल दिस विल बी फॉर यू. थैंक यू सो मच विनिशा जी. Thank you, RJ. Alak, next question from you. Yes. What are your notions about this field? And do people recognize you outside the studio also? हाँ, तो नोशंस अबाउट द फील्ड, लाइक आई सेड, कि एक तो सिर्फ आके बोल के चले जाओ, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं होता. बहुत सारी चीजें करनी होती है. दूसरा ये कि सिर्फ बोलना पड़ता है नहीं, बहुत सारी चीजें और भी होती है. जैसे मैंने आपको बताया, बैक एंड पे क्रिएटिव बनाना, आइडिएशन प्रोसेस, आपको डिजिटल प्रेजेंस भी एनहांस करना, ये सारी भी चीजें एस्पेक्ट होती है एक अच्छे रेडियो जॉकी की. और क्या एक नोशन होता है कि आरजेस मेक अ लॉट ऑफ मनी. ऐसा नहीं होता. तो हम्बल बिगिनिंग्स होती हैं. वंस यू गेट देयर, उसके बाद फिर तो डेफिनेटली, बट इट्स, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आरजे बनना चाहते हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट दिस इज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ ऑल टाइम्स. नहीं, ऐसा नहीं होता. शुरुआत हम्बल ही रहेगी आपकी, स्पेशली इन सिटी लाइक जयपुर, स्मॉल टाउन में ऐसा ही रहता है. बट इवेंचुअली इफ यू आर पैशनेट इनफ एंड इफ यू मेक अ मार्क, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू. अच्छा, people outside, yeah, people do recognize me outside of the studio and it's so amazing to feel that. जैसे कि एक दफा मैं आपको बताती हूँ, मैं किधर जा रही थी, कोई कैब ड्राइवर थे मेरे साथ, उन्होंने मेरा शो सुना और मैं बात करी थी तो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया इमीडिएटली. मैम, इनकी आवाज आपकी जैसी. मैंने कहा मेरी ही आवाज है. एंड वो इतना खुश हुए. उसके बाद उनके पास पेन और पेपर नहीं था, पर वो इतने ज्यादा खुश हुए, उन्होंने कार पुल ओवर की पार्क की साइड में, उन्होंने 10 का एक नोट निकाला. ऑल्दो मैं अगेंस्ट नोट को खराब नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा मैम मैं इसको हमेशा अपनी डायरी में संभाल के रखूंगा. उन्होंने एक ऑटोग्राफ लिया उस नोट के ऊपर मुझसे. एंड मुझे इतना अमेजिंग लगा जो उनका रिएक्शन था. और फिर और भी हम जिधर भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैंग आउट, मतलब मेरे स्पेसिफिक हैंग आउट स्पॉट्स हैं जब मैं वीकेंड पे जहाँ जाती हूँ. अब तो नहीं जाती बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट जहाँ जाती थी तो वहाँ पे पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग मी एनीवे बिकॉज आई कीप गोइंग देयर ऑफन. एंड डिजिटल प्रेजेंस भी है. वीडियोस की डूइंग डाउन्स ऑन व्हाट्सएप, लाइक द वन आई जस्ट शेयर्ड विद आयुषी थोड़ी देर पहले. आई जस्ट पोस्टेड अ वीडियो बिफोर कमिंग हियर, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था यहाँ पे आने में. हैप्पी हैप्पी में आई थी. बट येस, पीपल डू रिकॉग्नाइज मी आउटसाइड द स्टूडियो और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है. लगता है कि यार कुछ कर रहे हैं जीवन में. You feel like a celebrity, right? वो तो मैं नहीं कहूंगी, वो तो आप लोग की Celebrity प्यारी feel है. आ जाती है. प्यारी है वो तो आप लोग का, बट देन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कुछ कर रहे हैं, सब्सटेंस है किसी चीज में. Okay. So Purkha, we all have so many school memories. School days are literally the best. So we would like you to share some of your school days memories with us. अच्छा, बहुत सारी. आई डोंट नो वेयर टू बिगिन. अच्छा, तो आई वाज द हेड गर्ल बाय द वे. मतलब आई वाज सरप्राइज, उन्होंने अनाउंस नहीं किया था पहले, एकदम सडनली हम लोग लाइन में खड़े थे. वो जो अब आई डोंट नो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चेंज हुआ है क्योंकि मैंने बहुत साल से नहीं देखा, बट स्टेज के साइड में स्टेयर्स थे, उसके वहाँ पे हम लाइन बना के खड़े हुए थे. एंड अचानक से वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई दैट भाग्यश्री, मेरा, अच्छा एक्चुअली माय ऑफिशियल नेम इज भाग्यश्री, पुरखा इज माय ऑनर नेम. एंड तो अनाउंस हुआ कि भाग्यश्री इज द हेड गर्ल एंड आई वाज लाइक ओ ओके. उसके बाद स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन माय टोज, चाहे टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो, चाहे कुछ भी सेलिब्रेशंस होते हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट जो करना होता था वो सब. एंड देन एनुअल फंक्शन होते थे, तब आई यूज्ड टू बी ऑन माय टोज. इधर से उधर भागे, और 3 मंजिल थी तब, तो शायद लिफ्ट्स भी नहीं थे, तो हम लोग स्टेयर से जाया करते थे. भागा दौड़ी सब कुछ. एंड इतनी स्पेशल मेमोरीज है मेरी. कुछ तो टीचर्स, आई एम नॉट श्योर अगर वो अभी ट्यून्ड इन है, आशुतोष सर जो हमें साइंस पढ़ाते थे, राष्ट्रीय मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती थी. हाय, मतलब बहुत अमेजिंग मेमोरीज है उनके साथ. दीपेन भाई हमारे सीनियर हुआ करते थे. एडमिनिस्ट्रेटर मैम जिनसे हम बहुत ज्यादा डरते थे. तो और हर फ्लोर पे ना एक
फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटर भी हुआ करते थे, आई एम नॉट श्योर अभी भी वैसा होता है कि नहीं होता। तो Yeah. उनसे भी एक गुलाटी मैम हुआ करती थी, उनसे हम घबराया करते थे कि कोई डांट दिया करती थी। तो अच्छी मेमोरीज है। बास्केटबॉल कोर्ट है अभी भी? Yeah, of course. हाँ, तो Edmonds हम is known for its basketball. Even Alak अभी भी is a होता है एडमंड्स basketball का? player. Yeah, एडमंड्स का it's होता है? there. हाय हाँ, अलक, of नाइस course. टू मीट यू, हाई फाइव। वेरी नाइस, मैं आऊंगी अगली दफा एडमंड्स कप होगा ना, मुझे बुलाना, आई लव टू बी देयर। 100% done. हाँ, तो After the बहुत बहुत lockdown सारी is over, मेमोरीज when है। everybody is missing the Edmonds Cup like anything. हाँ, और मुझे याद है बीच में एक टाइम था जब दिपेन भाई ने उसको होस्ट किया था, तो वो तो वैसे ही एक फुल ऑफ एनर्जी तो इंसान है वो। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट एनुअल फंक्शन में एंड में भांगड़ा हुआ करता था, आई एम नॉट श्योर अब पैटर्न ऐसा रहता है, एंड Yeah, में भांगड़ा होता था। yes. Yeah. तो हम लोग वो बैठ के देखा करते थे, वेट करते भांगड़ा कब आएगा, भांगड़ा कब आएगा, फिर सब जो मजे करके जाते थे। बड़ा अमेजिंग टाइम था यार, स्कूल डेज तो कभी Bhangra वापस नहीं आ is, सकते। yeah, Bhangra is still the most awaited performance. That's why we have it at हाँ the last. हाँ, ओके, अगली दफा मैं आऊंगी दोनों दोनों जगह, एडमंड्स कप और एनुअल फंक्शन दोनों में। Okay, we'll surely take your appointment. मैं खुद से बोल रही हूँ कि मैं आऊंगी, आपको अपॉइंटमेंट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनवाइट भेज दीजिएगा। Sure, sure. So, अगला Alak, सवाल कीजिए। Okay, so what are the three most important qualities a radio jockey must have? देखो, आपके सवाल करने से पहले ही मैं आंसर करे जा रही हूँ, हाँ, मुझे she ऑलरेडी has पता already answered. ये तो है। भाई आरजे है ना, तो बकैती में निकल ही जाता है। तो जैसे मैंने कहा, यू हैव टू बी रियली प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड यू हैव टू बी वेरी आर्टिकुलेट, मतलब नॉनसेंसिकल चीजें नहीं, जब बोलो तो सेंस बोलो और सब्सटेंस के साथ बोलो। दैट्स, आई थिंक दीज आर द थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। Alak, you can come And to you the have all of them very beautifully. थैंक यू, अ बिग हार्ट टू यू। इतना ही बन सकता है मेरे हाथ से। Thank you. लेट मी Alak, सी you दैट can मोर go ahead with कमेंट्स। the second last question. Sorry, I'm reading the comments. Okay, Sorry, so Alak, I'm Yeah, interrupting. yeah, sure. Anish okay. bhai, hi, going great, keep up the momentum. Thank you so much. Shweta, sorry, hi, I'm sorry I don't know you, but Vijay Lakshmi Sharma, thank you. Dipen bhai ka I've already answered. Let me see, there's another one. Swati Gupta, what should we take after 10th class for Swati, you don't have to be from any particular stream to become an RJ. Like I said, you just have to be a graduate, and that's about it. Be good at other skills, be out there, presentable, be well informed, and that's about it. Bhavna Gia Malani says, "Hey Purka, you're really amazing. Can you suggest how can one follow their own passion, leaving behind what their educational qualification is?" Bhavna ji, like I said, मेरी भी educational qualification बहुत मोटी सारी थी. इट डज नॉट मैटर, अगर आप सही में कुछ करना चाहते हो और वही चीज करना चाहते हो जो आपके दिमाग में है, तो कुछ करते रहो पढ़ाई के साथ ही, वो चीज की तरफ अपना एक एक एफर्ट मारते रहो, बेबी स्टेप्स के साथ आप वहां पहुंच जाओगे। दिस इज हाउ आई डिड इट, आप भी ट्राई कीजिए, हो सकता है आपके लिए काम कर जाए। हिमांशी असरानी says, wow, feels like I'm living my school life again, so amazing. Hi Himanshi, I'm sorry I don't remember you. She Poonam, was the head girl last to last year of our school. अच्छा, Yeah. लॉन्ग टाइम। हाँ, तो अच्छा, और कुछ है मैसेज जिसको मैंने छोड़ दिया? ममता जी, लव यू आंसर, थैंक यू। बाकी सब आंसर कर दिया मैंने, ठीक है। Yeah, प्लीज those गो are ऑन। the teachers. Puna ma'am, Mamta ma'am, they are our teachers and they are giving you some good wishes. थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मैम, मैं आपको जानती नहीं हूँ, पर मैं स्कूल आऊंगी तो मैं जरूर मिलूंगी आपसे। Yeah, okay. Alak? Yes. So our teachers, parents, and students are watching it live. So we would love to have a message from you for our teachers, parents, and students. टीचर्स के लिए तो ये कि आप बहुत अमेजिंग काम करते हैं। मतलब अब मैं जब क्योंकि स्कूल छोड़ चुकी हूँ, तो मैं रियलाइज करती हूँ कि जो चीजें उस वक्त हमें खलती थी कि यार ये मैम ऐसे क्यों करती हैं, ये ऐसे क्यों कहती है, वो बाद में समझ आता है कि अच्छा, राजश्री मैम इंग्लिश के लिए कोई टोका करती थी, फाइन इसलिए लगता था इंग्लिश नहीं बोलने पे। अब समझ आती है वो सारी चीजें। तो इट्स ऑल वेरी क्यूट, आप लोग बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, हम लोग को थोड़ा थोड़ा लगता है जब आप लोग डांटते वाटते हैं, बट बाद में समझ आता है अब इस एज में आते आते। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूंगी कि यार प्लीज फॉलो योर पैशन, मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मेरे पास इतनी डिग्रीज है, मैं जब भी रेडियो छोड़ के जाना चाहती हूँ, आई ऑलवेज हैव अ प्लान बी सी डी, इनफैक्ट ई एफ तक है मेरे पास प्लान, जितनी डिग्रीज है। तो आप हमेशा अपने प्लान बीज रखो, बट जो आपका प्लान है ए होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, साथ साथ बेबी स्टेप्स लेते रहो, आपका जो भी पैशन है उसको परस्यू करने के लिए। आपके पास बेनिफिट ये है, हम लोग के पास तो इतने मोबाइल फोन्स नहीं थे, स्मार्टफोन्स, आप लोग के पास आईफोन्स, रिंग लाइट, सब कुछ अभी से है, तो यूटिलाइज देम। इफ यू लाइक क्रिएटिंग कंटेंट, सब्सटेंस की बात करना चाहते हो, वीडियो बनाओ। आई कीप सीइंग दीपेन भाई शेयर लॉट ऑफ वीडियोस जो स्टूडेंट्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप का कंटेंट बनाते हैं, तो वो चीज करते रहो, एंड आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे एज लॉन्ग एज यू कीप डूइंग गुड थिंग्स।
तो वो चीज करते रहो एंड इवेंचुअली यू विल रीच वेयर यू आर सपोज्ड टू एंड दिस टाइम। पेरेंट्स वाला रह गया। पेरेंट्स के लिए क्या? ओह सॉरी यार, मैं खुद पेरेंट्स को तो मैं क्या ही कहूँ, पर ये कहना चाहूंगी कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनिशियली थोड़ा सा प्रेशराइज किया था कि नहीं पढ़ाई करो, वो इन अ वे अच्छा था क्योंकि मेरे पास प्लान BCDEF है जैसे मैंने कहा। पर पेरेंट्स से मैं ये कहूंगी कि बच्चों को जो करना है ना, उनको प्लीज स्ट्रीमलाइन उसी डायरेक्शन में करो, क्योंकि बाद में जैसे मैं भी इवेंचुअली अब उसी फील्ड में आई, अगर पहले जाती तो शायद आज मैं कहीं और होती, पर जहाँ पे हूँ वो भी ऊपर वाली का करम है। तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए जो वो करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले उनको ये फाइंड आउट करने में हेल्प कीजिए कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि लोग इतने कंफ्यूज होते हैं अपने दिमाग में, उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है जीवन में। आप उनको ऑप्शंस दीजिए, आप नोटिस कीजिए कि वो क्या चीजों में अच्छे हैं इनहेरेंटली। जैसे मैं इनहेरेंटली क्रिएटिव हूँ, फनी हूँ, और इनहेरेंटली मैं अच्छा बोल सकती हूँ, अच्छे वक्ता जिसको कहते हैं। तो अगर आपका बच्चा वो है तो आप उनको किसी मीडिया वाली फील्ड में डालिए। अगर आपका बच्चा क्रिएटिव है, ड्राइंग अच्छी करता है, तो उसको आर्ट वाले फील्ड में डालिए। तो फिगर आउट आपको करना पड़ेगा बच्चे को हेल्प करने के लिए। इतना ही ज्ञान दे सकती हूँ क्योंकि मैं तो पेरेंट हूँ नहीं, तो इससे अलावा मुझे नहीं पता। Thank you so much, Purkha. And we have some more comments if you want to read them. Please go Yes, ahead. please just. Pallavi Jain says you're amazing. Thank you. Shalu Mathur says amazing. Thank you. Swati Gupta. Yes, we can definitely meet. या तो मैं स्कूल आती हूँ अगर आप स्कूल के हैं, या फिर सिचुएशन बेहतर हो तो मैं आपको अपने स्टूडियोज इनवाइट करूंगी, आप स्टूडियो आइएगा, हम वहाँ पे मिलेंगे। You're a very nice guy. Thank you. Karthik Thawani says while interviewing Shashi Tharoor, did you find any difficulty while addressing him because of his conviction of? Oh, so देखिए मैंने ना स्मार्ट प्ले किया, मैंने शशि थरूर का हिंदी टेस्ट लिया था, मैंने अंग्रेजी में बात ही नहीं की भाषा। क्यों मैं इतने डिफिकल्ट वर्ड सुनूं और उनका जवाब या डिक्शनरी फाइंड आउट करूं। तो मैंने हिंदी का टेस्ट लिया उनका, और जो उन्होंने बहुत अमेजिंगली आंसर किया और बहुत अच्छे से उनका स्कोर भी आया। तो आपने नहीं देखा वीडियो तो आई विल शेयर अ लिंक इस लाइव सेशन के खत्म होने के बाद, ठीक है? Checking out others. RJ Purkha, you're really inspiring us by your amazing views. Yes, ma'am. Vinisha ma'am, agar ma'am hai to, I will definitely come to the school and meet you. I followed you on Instagram. Thank you. So, guys, once again, before we sign off, RJ Purkha is my handle, PURKHAA on Instagram and Twitter. Like I said, Facebook I don't use a lot, but हाँ मेरा Facebook पे भी page है. And lovely talking to you, Ayushi, Dipen bhai, and everyone who is watching right now. Thank you so much for your time. आप connect किए हमारे साथ बात करने के लिए, sorry हमें सुनने के लिए. And that's about it. Lots of love. सुनिएगा मिर्ची 98.3 RJ Purkha 3 to 5 PM जयपुर में. Okay, so thank you so much for being on the show, Purkha. It was our immense pleasure to have you on our show. It was a great show indeed, and we all enjoyed it very much. We felt like we are on air on our own St. Edmund's radio channel. How And sweet. thank you, Alak, for being an amazing co-host. And Welcome, goodbye ma'am. to our audience. I hope you all enjoyed the show. Thank you so much, guys. And, Bye. That's my time. bye. Thank you so much, Purkha. And to the audiences, we'll be back soon with another episode of Careers Over Coffee. Stay tuned. Bye. Bye. Bye.